Hello, dear students. As we were studying alternating current, and in the previous video, we had studied about power related to LCR circuit, LR circuit, CR circuit, and also the energy density of a magnetic field. Today, we are going to learn about the new circuit, that is LC circuit. What is LC circuit and what happens in the LC circuit, that we'll study in this video. So basically, when we are having a circuit in which L and C are present, suppose this is L and here we are having C. These two things are connected in a circuit. So what happens over here is, suppose this capacitor is fully charged. This capacitor is charged fully. So it will be having some energy, and that energy is half q square by C. We can say it as half q square by C or half CV square or half QV. These are the formula related to capacitor C. This is our inductor L. So when we connect this charge capacitor to the inductor which is non-resistive, matlab we are taking ideal case over here. If it is non-resistive, what will happen in the circuit? So here what you are going to see is, when a charged capacitor is allowed to discharge through a non-resistive inductor, the electrical amplitude of same amplitude and frequency are produced. Means यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आपका चार्ज है, that charge will start flowing from capacitor to the inductor, and this inductor will start holding this charge. So basically in LC circuit like this, what happens is your electrical energy, this energy is electrical, and the energy stored in inductor is called magnetic energy. कौन सी एनर्जी बोलते हैं? मैग्नेटिक एनर्जी. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी? हाफ एल आई स्क्वायर, which we had already seen in the previous video. So in LC oscillation, what happens actually is electrical energy is converted into मैग्नेटिक एनर्जी. किस में कन्वर्ट होगी? मैग्नेटिक एनर्जी में. कहने का मतलब ये, सिंपल सी बात, when the circuit is closed, the capacitor will begin to discharge through the inductor, which causes a current I. कितने अमाउंट का करंट? I अमाउंट का करंट will start flow in the circuit. When this current flows, and it will keep on increasing, so the part of electrical energy of the capacitor starts storing in the inductor in the form of magnetic energy. Once the whole charge is being discharged from the capacitor and the whole energy is stored in the inductor, then the inductor will start discharging and the whole charge gets stored in the inductor. तो सिंपल सी बात ये कि पहले जो आपकी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी जो आपकी एनर्जी थी, दैट एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू हाफ एल आई स्क्वायर. तो सिंपल सी बात ये कि जब जब कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज होगा, इसका कंप्लीट डिस्चार्ज होने को देखने को मिलेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द इंडक्टर विल कीप ऑन डिक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ. तो इसी की वजह से जो भी आपकी मैग्नेटिक एनर्जी है, वो मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, दैट विल स्टार्ट कन्वर्टेड टू मैग्नेटिक एनर्जी. वंस द इंडक्टर गेट फुल्ली चार्ज, देन इट विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग. मतलब इसकी जो एनर्जी होगी वो डिक्रीज होना शुरू कर देगी, और वो डिक्रीज होकर के कहाँ पर स्टोर हो रही होगी? आपके कैपेसिटर में स्टोर हो रही होगी. तो यहाँ पर जो भी आपको ऑसिलेशंस देखने को मिलेंगे, यहाँ पर जो भी आपको ऑसिलेशंस देखने को मिलेंगे, किसके पास? इंडक्टर के पास. उन्हीं ऑसिलेशंस को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं ऑसिलेशंस को हम LC ऑसिलेशंस बोलते हैं. तो सिंपल सी बात, यहाँ पर कोई भी चीज़ है वो हमारी नॉन रेजिस्टिव है. तो नॉन रेजिस्टिव है तो यहाँ पर जो भी हमें ऑसिलेशंस देखने को मिलेंगे, उन सारे के सारे ऑसिलेशंस की जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या रहने वाली है? वो फ्रीक्वेंसी हमारी
फिक्स्ड रहेगी, मतलब बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। मतलब यहाँ पर हमें जो ऑसिलेशंस मिलेंगे वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस मिलेंगे। अगर यही यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस होता, ये इंडक्टर के पास रेजिस्टेंस होता, तो यहाँ पर जो आपको ऑसिलेशंस मिलते वो ऑसिलेशंस आपको डैम्प्ड ऑसिलेशन मिलते, मतलब ये डिक्रीज होते चले जाते और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इनके ऑसिलेशन क्या हो जाता, जीरो हो जाता। यानी कि आपको डैम्प्ड ऑसिलेशन मिलने का क्या रीजन होगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन आपको तभी मिलेंगे जब आपके इंडक्टर के पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो सिंपल सी बात कि अगर इंडक्टर के पास रेजिस्टेंस है तो उसकी वजह से आपकी बहुत सारी एनर्जी किसमें लूज हो जाएगी, हीट के फॉर्म में लूज हो जाएगी, तो उसकी वजह से आपके ऑसिलेशन डिक्रीज होंगे। ठीक। दूसरी चीज कि जब कभी भी आपका एलसी एसिलेशन वाला सर्किट होगा तो वहां पर आपको डैम्प्ड ऑसिलेशन कब मिलेंगे, कि भैया जब कभी भी ये ऑसिलेशंस हो रहे होंगे तो इन ऑसिलेशन से ही आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलेगी, जो अपना अगला चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाने के लिए भी जो हमें सर्किट चाहिए होता है वो एलसी सर्किट की ही जरूरत होती है। तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगी सिस्टम की, वो अगर रेजिस्टेंस नहीं भी है तब भी आपकी कांस्टेंट नहीं रहेगी, टोटल एनर्जी विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, बिकॉज some part of the energy will be radiated in the form of electromagnetic waves, which helps in the working of TV, radio transmitter and all other our electronic devices. तो सिंपल सी बात ये कि यहाँ पर एलसी सर्किट का बहुत बड़ा रोल है हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो हम सबसे पहले तो हम यहाँ पर आइडियल केस की बात कर रहे हैं कि ये हमारा जो सर्किट है, ये सर्किट हमारा कैसा है, नॉन रेजिस्टिव है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी। मतलब अगर मैं इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करने की कोशिश करूँ तो हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर हमें ऑसिलेशंस मिलेंगे, वो चेक करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डू मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ एलसी ऑसिलेशंस। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो हमें एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, इंडक्टर के पास जो भी हमें ईएमएफ मिलता है वो माइनस एल डी आई बाई डी टी मिलता है, और कैपेसिटर के पास जो हमें रिलेशन मिलेगा दैट विल बी क्यू बाई सी। अगर मैं यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करूँ तो ऑब्वियस सी बात है, ये मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। आई इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी पढ़ा है हम लोगों ने। तो माइनस ऑफ एल डी बाई डी टी ऑफ डी क्यू बाई डी टी ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ये कितना हो जाएगा, क्यू बाई सी, दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो माइनस ऑफ एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल आ जाएगा यहाँ पर, एंड इट विल बी क्यू बाई सी विच इज इक्वल टू जीरो। थोड़ा और सॉल्व करने की कोशिश करें तो डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस या माइनस क्यू अपॉन एल सी, दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ऐसा ही रिलेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर जो भी आपका ये नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, ये नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ हमें ये इंडिकेट करता है कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू हमें प्लस मिल जाएगी। इस वैल्यू को अगर मैं डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई से कंपेयर करूं, दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, इससे कंपेयर करूं तो यहाँ पर मुझे एस एच एम होता हुआ दिख रहा है। मतलब ये बिल्कुल यहाँ पर y की जगह पर यहाँ q है। तो ऑन कंपेयरिंग वन एंड टू, ऑन कंपेयरिंग वन एंड टू, what we'll get, omega square is equal to 1 upon LC. So this omega square, that is omega square is equal to 1 upon LC, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, omega is equal to 1 upon root LC, and this can be written as 2 pi f is equal to 1 upon root LC, and this will be equal to f is equal to 1 upon 2 pi root of LC। ये हमारी फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशंस हमें दिखाई देंगे कहाँ पे, जहाँ कहीं पर भी LC सर्किट होगा वहाँ पे। अब यहीं पर एक और चीज देख लेते हैं कि हमारी एनर्जी यहाँ पर कंजर्व रहती है या नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन
LC ऑसिलेशन, मतलब जो भी आपकी एनर्जी है वो पूरी की पूरी आपकी मैग्नेटिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है या नहीं हो रही है। उस चीज़ को चेक करने का क्या तरीका है? सिंपल सी बात, एनर्जी स्टोर्ड इन केस ऑफ कैपेसिटर जो आपको देखने को मिलेगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, और उसको हमने क्या लिख दिया, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। और अगर मैं मैग्नेटिक एनर्जी की बात करूं तो मैग्नेटिक एनर्जी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट मुझे हाफ एल आई स्क्वायर मिलेगी। यहां पर अगर मैं टोटल एनर्जी लिखूंगा तो दैट विल बी यू ई प्लस यू बी, ऐसे ही देखने को मिलेगा। यू ई की जगह आप क्या लिख सकते हो, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, और यू बी की जगह क्या लिख सकते हैं आप, हाफ एल आई स्क्वायर, ऐसे ही लिख पाएंगे। अब आई जो था वो आई हमारा क्या था, आई हमें सपोज हम यहाँ पर चार्ज जो है वो चार्ज हमारा ऑसिलेट कर रहा है, तो चार्ज की हमने इक्वेशन क्या मान ली, सपोज क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। तो आई हमें कितना मिल जाएगा, डी क्यू बाई डी टी। और आई जब मेरा डी क्यू बाई डी टी होगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसको ओमेगा क्यू नॉट साइन ओमेगा टी ऐसे ही लिख पाऊंगा, और यहाँ पर नेगेटिव साइन भी आपको देखने को मिलेगा। तो आई जो है वो यहाँ पर आपको नेगेटिव साइन के साथ मिलेगा। तो जो भी यहाँ पर आपको करंट है वो इंड्यूस्ड करंट मिल रहा था, यानी कि यहाँ पर जो भी आपको करंट मिलेगा वो करंट नेगेटिव मिलेगा, यानी कि वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये कैसा करंट है, इंड्यूस्ड करंट है। तो इंड्यूस्ड करंट तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपने क्या किया, यही क्यू और आई की वैल्यू आपने इस रिलेशन में प्लेस कर दी। तो u विल बी इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया आपने, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी क्यू स्क्वायर अपॉन क्या लिख दिया आपने, अपॉन नीचे हमारा रिलेशन क्या है, नीचे हमारा रिलेशन c है, प्लस दूसरा रिलेशन क्या है हमारा, हाफ एल आई स्क्वायर, और i की जगह अगर हम लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं रिलेशन देखूं तो दैट इज, हाँ, ओमेगा स्क्वायर क्यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो u विल बी इक्वल टू हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और दूसरा रिलेशन हमारे को जो मिल रहा है वो मिल रहा है हाफ एल इंटू ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, वन अपॉन एल सी। इसकी जगह पर हम लोग रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन एल सी इंटू क्यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो u यहाँ से जो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, तो देखो l से l कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी मुझे क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी मिल रहा है, यहाँ पर भी क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी मिल रहा है, यानी कि क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी में कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यानी कि सारी की सारी एनर्जी किस में स्टोर हो गई, क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी में स्टोर हो गई, और यही हमारी क्या थी, इनिशियल एनर्जी थी। तो देखो टोटल एनर्जी भी जो आ रही है वो हमारी इनिशियल एनर्जी के बराबर ही आ रही है। दिस शोज दैट एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, एनर्जी क्या रहती है हमारी, कंजर्व्ड रहती है इन केस ऑफ LC ऑसिलेशन। सो दिस वाज द टॉपिक रिलेटेड टू LC सर्किट। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।